Our topic is a system hacking in both operating system, that is a Windows 10 and Windows 10 and Linux. So basically, all the information or technique you will be learning here is for only for educational purpose and should not be used for any malicious activities. So basically, we have two types of companies, those that have been hacked and those that will be. या तो वो कंपनी ऑलरेडी हैक हो चुकी होगी और या आने वाले टाइम में वो कंपनी किसी ना किसी हैकर का टारगेट होगी. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी to secure our systems so that none of the malware or none of the hacker can attack into your system. So starting from Windows, so as you all know that Windows OS was developed by Microsoft to overcome the limitation of its own MS-DOS. MS-DOS सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट का, जो कमांड लाइन आता था C++ में वो बना था. So the first successful version of Windows were Windows 3.0, which was released in year 1990, and Windows after Windows 3.0 we have a Windows 3.1, which was released after the 2 years of Windows 3.0, that is in year 1992. Other versions which you might know, like Windows 95, 98, 2000, then XP, Vista 7, 8, 8.1, and last we have a latest is Windows 10. So जो Windows आपका 1.0 था वो स्टार्टिंग था 1985 से, एंड नाउ वी हैव अ 2021 व्हिच इज हैविंग विंडोज 10. अकॉर्डिंग टू द एक्चुअली न्यूज ये कहती है कि आपका विंडोज जो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट विल बी योर लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कोई विंडोज नहीं नहीं निकाल रही है, ना विंडोज 11 आएगा ना विंडोज 12 आएगा. सो विंडोज 10 के ही आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेंगे, एंड दिस विल बी योर लास्ट विंडोज बाय माइक्रोसॉफ्ट. सेम एज अगर हम लाइनक्स की बात करें तो लाइनक्स यू ऑल नो दैट इट इज अ कमांड लाइन सिस्टम, बट नाउ almost 80 to 90% all of the Linux distros was available in graphical mode. हर एक Linux का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आज की डेट में ग्राफिकल मोड के साथ आ रहा है, जिसे हम कहते हैं GNU. So Linux was originally built by Linus Torvalds at the University of Helsinki in year 1991 में आपका Linux शुरू हुआ था. So Linux is a Unix based kernel which is a fully memory protected and multitasking operating system. Multitasking means you can run as many as command on parallel mode. So Linux is an open source. Every a single line of code is available on the internet. You can even download the Linux code and modify it and rebuild it again. आप अपने नाम से भी Linux का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं बिकॉज इट इज अ प्योरली ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. Linux के कौन कौन से आपके वर्जन आते हैं, लाइक यू हैव अ SUSE, Fedora, Red Hat, Debian, Ubuntu, Knoppix, Slackware, then Kali Linux, Black Arc, Black Ubuntu, Tails, etc. There are n number of operating systems are already being published in Linux operating system. So the first Linux kernel was released on year 1991. जब आपका पहला Linux जब रिलीज हुआ था 0.01, तो उसी टाइम आपका Linux का एक जो कर्नल था जो यूनिक्स बेस्ड था वो भी रिलीज हुआ था. सो अगर हम दोनों की बात करें बेसिकली बिफोर गेट इनटू एक्सप्लॉइटेशन और इन हैकिंग यू मस्ट नो अ लिटिल बिट डिफरेंस अबाउट दिस टू ऑपरेटिंग सिस्टम. तो अगर हम विंडोज और लाइनक्स की बात करें, लाइक इन विंडोज वी हैव अ डॉस प्रॉम्प्ट जिसे आप कमांड लाइन कहते हैं, CMD, और यू मे कॉल. बट इन लाइनक्स वी हैव अ बैश शेल जिसे हम टर्मिनल भी कहते हैं. सो बोथ आर द सेम थिंग. कमांड डॉस प्रॉम्प्ट में आप विंडोज की कमांड यूज कर सकते हो जैसे dir होता है. देन इन Linux we have a bash shell जो आपकी Linux की कमांड चलती हैं. इन Windows we have a MS Office, इसमें ऑफिस हम यूज करते हैं फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटेड थिंग्स. बट इन Linux we have ना ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस, बोथ आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स. In Windows the top browsers are like Firefox and Chrome, but in Linux the best one the browsers are Icewessel or Chromium, which is being default in every operating system. In Windows, the drive structure is like C drive, D drive, E drive, but in Linux, the drive or root structure is like slash, then slash mnt, slash dev, slash sga, slash home. So it's all starts about a slash. So slash is your root directory. In Windows, if you want to see your all process and if you want to control the process and services, then the option is a task manager, or you can make called as the end task if you want to end any task, any service which are running in your operating system.
But in Linux, to kill any service, the command is kill. And if you want to see all the process and services running on your Linux machine, then the command is top. So this is the just a basic overview of both Windows and Linux operating system. Further, in Windows, we have a notepad to write or to text, to save any text. Then in Linux, we have a gedit, vi, and vim editor, which is used for text editing. Windows, we know that the इसमें जो आपका file structure है, that is a exe based file structure, executable file structure. But in Linux, इसमें exe नहीं चलती है. So the जो Linux operating system है, that supports your bash, perl, and python file structure. Windows में if you want to delete any drive or anything, any external drive or any inbuilt drive, you have to use a format, like you have to format the pen drive, etc. But in Linux, if you want to format anything, any drive, any directory, then the command is mke2fs. In Windows, we have a find option, like to find anything about in search files and folders. But in Linux, we have a command called as grep. In Windows, we have an option called as a firewall, which protects your system from network threats or some malware threats. But in Linux, the firewall is already being installed by default, called as the SC Linux. So SC Linux के भी आगे दो तीन मोड होते हैं, like you want to enforce, you want to stable, etc. Windows में अगर हमने किसी भी प्रोग्राम को यूज करना होता है, then we always use as a run as administrator. But in Linux, if you are some low privilege user and you want to execute any command with a root privilege, then the command is a sudo command. So ये दोनों का एक छोटा सा difference है, like in Windows and Linux, which you should know if you want to go into these exploitation techniques. So basically, what you can do with your Linux. आप Linux में क्या कर सकते हो? The first, you have to you can do easily information gathering about any domain, network, VoIP or IP. Then you also can do like network scanning, exploration, sniffing and snooping is also possible with the Linux, but in Windows it is not possible. The only reason is because Windows operating system is a boxed operating system. You don't have any access to modify or anything with DLL files. You don't know the structure of your Windows because Windows is purely a closed operating system. But in Linux, it is an open source. Everybody knows like how to compile, how to regenerate the file structure, how to make the scripts and all. So that's why these all things will be possible in only Linux. Like you can scan your websites, or you can even exploit any website with the help of Linux operating system. Wireless scanning is plays a major role in Linux. Like you can even hack any kind of Wi-Fi network in your nearby. And in wireless network, even further sniffing and spoofing is also possible. There are n number of tools are available in Linux. So the next we have a reverse engineering. Reverse engineering like to crack any kind of software, to debug any kind of file or system service you easily can do with your Linux operating system. Then further, digital forensics plays an important role in this field. Like digital forensics में आपका आता है कि like if you want to make a copy of your hard disk quickly without any loss of the data or hashing, then you can easily go with the digital forensics. Then further you can use a brute force attacks. Like if you want to hack any kind of username, password, or of any website of any service, you can easily do with your Linux operating system. And the last, we have a buffer overflow attacks that can also be possible with Linux or even possible with Windows also. So as you can see that there are n number of advantages by using Linux. That's why Linux is one of the most favorite tool of nowadays to hackers. तो आजकल के जितने भी हैकर्स हैं या स्कैमर्स हैं या स्पैमर्स हैं, वो लाइनेक्स को ही प्रेफर करते हैं बिकॉज इट इज़ अ बिकॉज एंड बहुत सारे टूल्स हैं जो ऑलरेडी लाइनेक्स में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं. बट दीज ऑल टूल्स आर नॉट हैकिंग टूल्स, दीज आर जस्ट अ स्कैनिंग और रिसर्च बेस्ड टूल्स. सो अगर एक स्कैनिंग टूल है, अगर आप उसे गलत काम के लिए यूज कर रहे हो, so that decision is only up to you only, because otherwise these all are research based tools and can only be used for educational purpose, or you can call as a testing tools. So ये सबसे 15 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स के, one of the best Linux boxes we call.
द फर्स्ट वन वी हैव अ काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर मोर देन आपके 600 हैकिंग के टूल्स इंस्टॉल्ड हैं, प्री इंस्टॉल्ड हैं, एंड विच इज अगेन जनरली यूज फॉर टेस्टिंग पर्पसेस ओनली, not for hacking like. So because we, as you know that there are two terms, vulnerability assessment and penetration testing, so in दोनों terms के लिए आपके यही Linux के boxes use होते हैं. Second, we have a Parrot operating system, which is again used by digital forensics experts. Then we have a Backbox, Black Arc, Fedora Security Lab, जिसमें आपके पेन ड्राइव के फॉर्मेट के टूल्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. इफ यू वांट टू रिकवर एनी डाटा फ्रॉम एनी यूएसबी पेन ड्राइव और यूएसबी हार्ड डिस्क, देन यू कैन इजीली डू विद योर फेडोरा सिक्योरिटी लैब. देन आपके पास ड्रैकोस है, एक बग ट्रैक सिस्टम है. देन केन अगेन इट इज अ फोरेंसिक्स टूल. देन सैमुराई वेब टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, जो मोबाइल पेन टेस्टिंग के लिए यूज होता है. लाइक अगर आपके मोबाइल का एक लॉग कोड लगा है एंड इफ यू फॉर एग्जांपल यू फॉरगॉट द लॉग, then you can easily break that pattern log by with the help of samurai web testing framework. Then अगर हम बात करें गवर्नमेंट के अंदर, तो गवर्नमेंट is also using these kind of Linux boxes, such as example as NSG, जो नेटवर्क सिक्योरिटी टूल किट है, जिसके अंदर बहुत सारे नेटवर्किंग टूल्स हैं, लाइक टू scan all the alive IPs in your network, to scan the DNS of your network or your domain, and to find the information about any IP address like IP4, IP6, to mapping the DNS with your subdomains and all. So these all the tools are already being installed in these kind of operating system. Next we have a Deft Linux, which is again very famous operating system used by forensics experts and like this. The last one we have a Tails. Tails is generally used for a privacy based operating system. Like if you want to open any website, like जनरली होता क्या है, जब आप किसी गूगल सर्च यूज करते हो किसी भी चीज को सर्च करने के लिए, लाइक आपने अगर शिमला सर्च किया है, लाइक यू वांट टू गो टू शिमला, एंड सडनली साइड बाय साइड you will see the ads in your Amazon or Flipkart की, like these are the famous places to go to Shimla, or in your Make My Trip account, you will easily get ads of these kind of websites. होता क्या है कि गूगल से या याहू से, इन सब चीज़ों से आपके हर एक कीवर्ड की मॉनिटरिंग होती है, ट्रैकिंग होती है. बट इफ यू वांट टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ ट्रैकिंग अगेंस्ट योर प्राइवेसी, देन टेल्स इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर आपकी पूरी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है. आप गूगल पे जो भी सर्च करोगे, यू वॉन्ट गेट एनी काइंड ऑफ एड्स इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम वाइल यूजिंग एनी काइंड ऑफ ब्राउजर आल्सो. सो टेल्स अगेन आज की डेट में हैकर्स भी यूज कर रहे हैं, बिकॉज दे आल्सो डोंट वांट टू रिवील देयर आइडेंटिटी, लाइक आप किसको टारगेट कर रहे हो, किसको अटैक कर रहे हो. सो दोनों तरफ ये लाइनेक्स आपके जो बॉक्सेस हैं यूज होते हैं एज अ, आप भी यूज कर सकते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, और हैकर्स भी अपने काम के लिए इन्हीं चीजों को यूज करते हैं, बिकॉज प्राइवेसी इज द मेजर कंसर्न इन लाइनेक्स. सो अगेन बात हम करते हैं सिस्टम हैकिंग गोल्स की, कि लाइक आपके सिस्टम हैकिंग, अगर आपने सिस्टम हैकिंग करनी ही है, देन व्हाट आर द डिफरेंट गोल्स टू अचीव दिस काइंड ऑफ थिंग्स. लाइक द फर्स्ट वन इज अ गेनिंग एक्सेस. आपको पहला स्टेप यही है कि हमेशा किसी भी टारगेट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, टू कलेक्ट इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट टू गेन अबाउट द टारगेट. लाइक आपने अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को हैक करना है, ही इज इन यूएसए, and the first thing you just want to know that the what is the IP address of your target, किसका IP address क्या है. अब IP address को टारगेट करने के लिए there are again a number of ways. आप उसको कोई वायरस भेज सकते हो, उसको कोई लिंक भेज सकते हो जिसके थ्रू आप उसका IP address पता कर सकते हो. देन फर्दर IP के बाद you have to know about the operating system which your target is using. लाइक वो विंडोज यूज कर रहा है या लाइनेक्स यूज कर रहा है. ऐसा भी नहीं है कि आपने वायरस बनाया है कि एक्सी फाइल में और वो आगे लाइनेक्स यूज कर रहा है, देन वो एक्सी फाइल तो आपकी चलेगी नहीं. सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन, लाइक व्हाट इंफॉर्मेशन यू नीड बिफोर टू गेट इनटू सिस्टम हैकिंग. सो द पहला स्टेप आपका यही होता है कि लाइक आपका टारगेट क्या यूज कर रहा है, कौन सा इंटरनेट है उसके पास, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कौन कौन सी वो वेबसाइट्स जनरली ओपन यूज करता है, उसका क्या इंटरेस्ट है इंटरनेट पे. दीज आर अगेन सोशल इंजीनियरिंग काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, एक एग्जांपल के साथ मैं एक चलता हूँ, लाइक देयर इज वन साइट कॉल्ड एज अ बिल्ट विद साइट में क्या होता है कि आप किसी भी डोमेन और आईपी की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो, लाइक उसके पीछे क्या चल रहा है. फॉर एग्जांपल अगर मैं सीडैक की ही बात करूँ, देन यू जस्ट नीड टू टाइप cdac.in एंड जस्ट you fill the captcha and enter it. You will get a lot of information about this domain. So again, it is a part of information gathering.
तो लाइक इसके सीडेक इन, अगर मुझे cdeck.in को फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू हैक और वांट टू इनमरेट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर टारगेट, देन दीज आर द लिस्ट ऑफ पॉसिबल things available which is available in your cdeck.in. लाइक इसमें गूगल टैग मैनेजर वो यूज कर रहे हैं, द फ्रेमवर्क इज ASP.NET. सो आपका जो एक एरिया था वो थोड़ा छोटा हो जाएगा फॉर टारगेटिंग फॉर। Chetan sir, you are not audible, sir. Okay, go back to we are using built with. So in built with you can see that CDEC is using ASP.NET framework. So again आप देख सकते हो कि हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि द वेबसाइट इज होस्टेड ऑन अ विंडोज सर्वर बिकॉज ASP.NET इज अ विंडोज फ्रेमवर्क. देन और अगर आप नीचे जाओगे देन यू विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द DNS, like which company DNS they are using, which email provider they are using, like SPF is a email hosting provider. And further you can get to know about your SSL certificate, like कौन सी कंपनी ने HTTPS सर्टिफिकेट इनको दिया है. एंड अगर यही इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी सी मिल जाती है देन यू कैन इजिली टारगेट इनटू एनी वेबसाइट्स. लाइक जैसे वेब सर्वर है इनका IAS का इंफॉर्मेशन, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, अगेन इट इज अ विंडोज बेस्ड IAS. इवन cdeck.in सपोर्ट्स IP वर्जन 6. सो थोड़ा सा आपका जो एक कवर्ड एरिया है या मैप्ड एरिया वो आपका यहीं से बन जाता है विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग. सो तो पहला आपका पॉइंट हो गया गेनिंग एक्सेस टू कलेक्ट इनफ इंफॉर्मेशन टू गेन. Then next we have a escalating privileges. Then to create a privileged user account if the user level is obtained. सिस्टम हैकिंग में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने हैकिंग कर ली या आपने किसी को मालवेयर भेजा एंड ही सक्सेसफुली रन दैट मालवेयर इनटू हिज सिस्टम, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू गेट टू नो अबाउट द यूजर कि आपको किस लेवल का, किस ऑथराइजेशन का आपको यूजर एक्सेस मिला है. अगर आपको लो लेवल, लो प्रिविलेज का यूजर मिला है देन योर टारगेट इज टू बी बिकम अ एडमिनिस्ट्रेटर. तभी आप उनके सभी रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो. लाइक इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट एनी फाइल इनटू योर टारगेट सिस्टम, तो मेक श्योर दैट यू मस्ट हैव अ एडमिनिस्ट्रेटर परमिशंस. तो सेकंड स्टेप आपका यही था, एस्केलेट प्रिविलेज. तो अगर आपको यूजर मिला है, आपको एडमिन के अंदर जाना है, देन दिस इज योर सेकंड स्टेप. लाइक हाउ यू कैन अचीव दिस प्रोसेस. नेक्स्ट यू हैव एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन. अगर आपको एडमिन अकाउंट मिल जाता है, आपको उसका पूरा रूट एक्सेस मिल गया या एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस मिल गया, उसका पूरा मशीन यू कैन सी एंड व्यू एंड डाउनलोड, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन जस्ट टू क्रिएट एंड मेंटेन द बैकडोर एक्सेस. मेंटेन बैकडोर का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी सिस्टम को हैक किया, देन फर्दर आप उसके बाद उसको दोबारा हैक करने की बजाय यू वांट टू मेंटेन, यू वांट टू ओपन द सेम हैक्ड कनेक्शन. तो आपको क्या करना होता है, एक बैकडोर मेंटेन करना था उसके सर्विसेज के साथ, सो दैट अगर नेक्स्ट टाइम वो सिस्टम अपना ऑन करता है यू विल गेट इजिली गेट इनटू दैट सिस्टम. तो बहुत सारे टूल्स आते हैं, लाइक डार्क कॉमेट आता है, साइबर घोस्ट आता है, जो ये मेंटेन बैकडोर बनाते हैं और आपके टारगेट के सिस्टम में मेंटेन करके रखते हैं. देर आर एन नंबर ऑफ टूल्स. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ. जैसे एक टूल बहुत फेमस था जिसे हम कहते हैं ब्लैक शेड्स रैट. तो ये वन ऑफ द बेस्ट एक हैकिंग का टूल था जो आप, जिससे आप एक मालवेयर बनाते हो. एक मालवेयर जैसे ही आपने बनाया उसका नाम रीनेम करो, लाइक फॉर एग्जांपल मूवी, फ्री मूवी डाउनलोड इस तरह का, और अपने क्लाइंट या अपने फ्रेंड या अपने टारगेट को सेंड करो किसी भी वे में, चाहे फेसबुक पे, चाहे व्हाट्सएप पे, एनीथिंग, एनी मीडिया यू कैन यूज. जैसे ही वो बंदा आगे वो आपकी EXE फाइल को क्लिक करेगा, यू विल इजिली गेट द सिस्टम ऑफ योर फ्रेंड और योर टारगेट. तो एक बार सिस्टम मिल जाता है देन यू कैन इजिली मेक द परमानेंट कनेक्शन बाय यूजिंग दीज काइंड ऑफ टूल्स. लाइक ब्लैक शेड हो गया आपका, यहाँ एक और टूल आता था जिसका नाम है डार्क कॉमेट रैट. you can even use these kind of tools. These are purely remotely administration tool. So
ये आपका थर्ड स्टेप था, एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन जस्ट टू क्रिएट एंड मेंटेन बैकडोर। नेक्स्ट स्टेप इज हाइडिंग फाइल्स। हाइडिंग फाइल मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अगर आपने किसी सिस्टम को अटैक किया, किसी को वायरस भेजा या किसी को मालवेयर भेजा, देन डेफिनेटली ये होगा कि अगले 10 दिन में कोई ना कोई एंटीवायरस आएगा जो आपका मालवेयर को डिटेक्ट करेगा, एंड योर मालवेयर और वायरस विल बी रिमूव्ड दैट यूर फ्रॉम योर टारगेट सिस्टम। सो हाइडिंग फाइल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि अगर आप किसी सिस्टम को हैक करते हो, मेक श्योर दैट यू मस्ट हाइड योर वायरस इनसाइड दैट सिस्टम। उसे चाहे किसी सर्विस में डाल दो, किसी प्रोसेस में बाइंड कर दो उस वायरस को, बट मेक श्योर दैट इट वोंट बी डिटेक्ट बाय एनी काइंड ऑफ एंटीवायरस। अब एंटीवायरस ना पकड़े इसके लिए भी आगे बहुत सारे मेथड्स हैं, लाइक यू कैन मेक इट अनडिटेक्टेबल, जिसे हम कहते हैं FUD। FUD इज द टर्म यूज फॉर फुली अनडिटेक्टेबल, FUD cryptor, as you can see that. So there are a lot of tools are there which await the antivirus by using FUD cryptors. तो इसमें क्या होता है कि आपको एक तरफ अपनी मालवेयर फाइल देनी होती है, तो दूसरी तरफ आपको आउटपुट सेट करना होता है कि कहाँ पे नई फाइल सेव हो। तो जो आपकी नई फाइल होगी दैट प्योरली विल बी अनडिटेक्टेबल बाय ऑल एंटीवायरस, which you can even scan your virus in with some kind of antivirus. सो ऑलरेडी आप देख सकते हो हैकर्स ने कितने सारे टूल्स बना रखे हैं इन तरह के काम करने के लिए। बिकॉज होता क्या है, एंटीवायरस तभी काम करते हैं जब वो सिग्नेचर मैच करता है। अगर आप उसका सिग्नेचर ही चेंज कर दोगे, कोई रैंडम वर्ड लगा दोगे, देन नन ऑफ द एंटीवायरस विल कैप्चर इट। आजकल के नो डाउट एंटीवायरस इतने अच्छे आ चुके हैं जो आपके सिस्टम का बिहेवियर देखते हैं। अगर उस बिहेवियर में ऐसी चीजें आ रही हैं, देन ही विल अलर्ट अ सिस्टम, अलर्ट अ नोटिफिकेशन। तभी वो आपको नोटिफिकेशन देता है कि हाँ इट माइट बी अ वायरस। इवन अगर विंडोज 10 की बात करें तो विंडोज डिफेंडर इज वन ऑफ द बेस्ट एंटी मालवेयर सॉल्यूशन। अगर आपने डिफेंडर ही डाल रखा है देन यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ अदर एंटीवायरस इन योर सिस्टम, बिकॉज डिफेंडर ही आपके विंडोज की बिहेवियर एनालिसिस करता है कि किस तरह का डाटा आप कॉपी कर रहे हो या डाउनलोड कर रहे हो। एंड द लास्ट स्टेप इज द कवरिंग ट्रैक। अब सारा कुछ होने के बाद द लास्ट स्टेप ऑफ द हैकर इज टू हाइड द प्रेजेंस ऑफ योर कॉम्प्रोमाइज, कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपने किसी को हैकिंग की एंड यू लेफ्ट द योर ट्रेस आउट इन दैट टारगेट सिस्टम। तो अगेन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस सिस्टम हैकिंग गोल। तो अगर हैकिंग कर चुके हो, हैकिंग के बाद आपने डाटा भी उनका स्टील कर लिया है, देन मेक श्योर दैट यू मस्ट रिमूव ऑल ऑफ योर ट्रैक्स विच यू हैव बीन यूज्ड इन दैट टारगेट मशीन। तो ये 5 स्टेप गोल है। हर 5 स्टेप के लिए टूल्स आते हैं, हर 5 स्टेप के लिए एक मेथोडोलॉजी है एक किसी सिस्टम के अंदर जाने के लिए। बिकॉज थोरेटिकली हमें पता है कि इन चीज़ों के अंदर बहुत कुछ है। अगर मैं गेनिंग एक्सेस की बात करूं या वायरस की बात करूं, देन पहला स्टेप ये था कि हाउ टू क्रिएट अ वायरस। अगर वायरस क्रिएट करना आपको आता है, देन ओनली यू कैन इन्फेक्ट योर वायरस, यू कैन स्प्रेड योर वायरस, यू कैन गेनिंग एक्सेस। ये आपका पहला स्टेप तभी शुरू होगा इफ यू नो अबाउट दिस काइंड ऑफ मालवेयर, स्पाईवेयर, लाइक हाउ टू बिल्ड, हाउ टू जनरेट। तो इन चीज़ों के बारे में देर आर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द इंटरनेट। अगेन ये सारी एजुकेशनल पर्पस के लिए है, बिकॉज मेक श्योर दैट यू मस्ट नॉट हार्म टू एनी वन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वायरस बनाना ही है, देन वन ऑफ द बेस्ट टूल इज MSF विनोम। सो MSF विनोम एक ऐसा टूल है जो आप जिससे वायरस बना सकते हो इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक अगर आपको किसी की लाइनेक्स ही हैक करनी है, तो आपको पता लाइनेक्स में EXE चलती नहीं है, देन अगेन यू कैन मेक अ वायरस इन द फॉर्म ऑफ पाइथन लैंग्वेज। तो आप पाइथन पर्ल के अंदर भी मालवेयर अपना बना सकते हो, जो आपको एक रिवर्स कनेक्शन देगा जैसी वो फाइल एग्जीक्यूट होती है किसी सिस्टम में। तो MSF विनोम इज ऑलरेडी अवेलेबल इन योर काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने कहा था जिसके अंदर 600 टूल्स आपके प्री इंस्टॉल्ड टूल्स हैं। तो आप काली लाइनेक्स यूज करके इन तरह के टूल्स को यूज कर सकते हो, and can be used for only for testing purposes only. So ये सिस्टम हैकिंग का जो गोल है, देन आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप ही यूज करना पड़ेगा। ये आपके स्टेप्स हैं अगर आपको हैकिंग के अंदर जाना ही है। बिकॉज अगर आपको हैकिंग आती होगी, देन ओनली यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अटैक्स। बिकॉज अगर आपको पता है कि आपका ये वाला पोर्ट ओपन है, या ये वायरस ये वाला पोर्ट ओपन करता है जिससे डाटा आगे सेंड होता है, देन ओनली यू कैन क्लोज योर पोर्ट एंड आइडेंटिफाई दैट पोर्ट। तो अब बात आती है, अगर मैं पोर्ट की ही बात करूं, तो हाउ यू कैन चेक द पोर्ट इन योर सिस्टम। तो आपका जैसे विंडोज 10 है आपका, अगर इफ यू वांट टू चेक द पोर्ट्स, देन द कमांड इज netcat -an। अब यहाँ से आप देख सकते हो देर आर अ लॉट ऑफ पोर्ट्स आर Sir, अवेलेबल।
Chetan sir, हाँ जी सर. sir, if you're showing something other than PPT, then please share your screen, sir. Sure sir, sure. So here you can see that I just ran the command here in the command is netchat space -an. So you can see that there are a lot of ports are open in your machine. Some ports are your TCP ports. You can see that TCP, and some are UDP ports. Of TCP, UDP, I think you know these two terms. One is a transmission control protocol and user datagram protocol. अब इसमें आप देख सकते हो जो TCP कनेक्शन आपका वो कहीं कहीं इस्टेब्लिश दिखा रहा है, कहीं कहीं लिसनिंग मोड में है. तो जो इस्टेब्लिश कनेक्शन है वही आपका एक ऐसा कनेक्शन है जो आप किसी के साथ बना चुके हो. इट माइट बी ऑन योर सिस्टम, इट माइट बी ऑन योर टारगेट सिस्टम. जैसे आपका ये 127, यू नो दैट इट इज योर लोकल होस्ट IP address, so it is connected with your again local host system, so it might be some internal service which is being connected with your process or service. तो आपको यहीं से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका IP है जो किसी बाहर वाले के साथ एस्टेब्लिश करके बैठा है. सो हेयर यू कैन सी दैट अब मेरे ब्राउजर में जैसे काफ़ी साइट्स खुली हैं, जैसे मेरी वेबमेल ओपन है या किसी हम गूगल में कुछ हमने सर्च किया, तो हेयर यू कैन सी दैट ये मेरा इंटरनल IP एड्रेस है विच आई एम यूजिंग 10.228 10.93 एंड दीज आर द पब्लिक IPs जिसके साथ मेरा एस्टेब्लिश कनेक्शन बना है. तो अगर आपको ये पता करना है कि लाइक आपका सिस्टम तो नहीं अगर कॉम्प्रोमाइज हो चुका या आपका सिस्टम तो नहीं किसी हैकर ने कॉम्प्रोमाइज किया, देन यू मस्ट नो अबाउट दीज IP एड्रेस. कि आपको इन्हीं IP एड्रेस के बारे में पता करना है कि ये IP एड्रेस किस किस के हैं एंड कौन आपका सिस्टम के साथ कनेक्शन बना के बैठा है और कौन यूज कर रहा है. अब कमांड लाइन इट इज़ वेरी मतलब बहुत वेरी डिफिकल्ट है इन IPs के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी, बिकॉज आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द जो कनेक्शन बना है उनके साथ एक पोर्ट लिखा है जिसका नाम है 443. इट मीन दीज आर द HTTPS कनेक्शंस. तो माइट बी डेफिनेटली ये मेरे ब्राउजर के अंदर ही कनेक्शन बने होंगे कोई ना कोई. जैसे इसमें मेरी 3-4 टैब्स ओपन है तो हर एक के साथ एक एक कनेक्शन बना होगा. तो अगर आपको यही सारा काम एज ए ग्राफिकली करना है विद इतना ईजी वे, देन विंडोज 10 के अंदर ही एक ऑप्शन आता है जिसे हम कहते हैं, अगर आप गूगल सर्च विंडो में लिखोगे रिसोर्स मॉनिटर, तो डायरेक्टली रिसोर्स मॉनिटर पे आप क्लिक करो. वो विंडोज 7 से लेके विंडोज 10 तक आपको ये ऑप्शन मिलेगी हर एक विंडोज में. तो देन हियर यू कैन सी दैट देयर आर 4-5 ऑप्शंस, ओवरव्यू, CPU, मेमोरी, डेस्क एंड नेटवर्क. हर एक चीज़ की आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, लाइक कौन सा प्रोसेस ज़्यादा चल रहा है, कौन सी सर्विस आपकी ज़्यादा टाइम ले रही है, कितना आप डाटा सेंड कर रहे हो, कितना रिसीव कर रहे हो. सो अगर आप नेटवर्क की बात करें, आप देख सकते हो नेटवर्क के अंदर एक ऑप्शन है नेटवर्क एक्टिविटी के अंदर. तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक प्रोसेस है मेरा ATMGR जो मेरा कंटिन्यूसली चल रहा है. सो माइट बी ये आपकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं इसकी सर्विस हो. तो आप देख सकते हो इसमें मेरा डाटा कंटिन्यूसली जा रहा है और रिसीविंग भी वो कर रहा है. सो अगर आपको किसी मालवेयर को पकड़ना अपने सिस्टम में या आपको देखना है कि मेरे सिस्टम में कोई वायरस तो नहीं है, तो मेक श्योर दैट आप सारी विंडोज बंद कर दो, सारी सर्विसेज बंद कर दो, सिर्फ अपना रिसोर्स मॉनिटर ओपन करो. अगर रिसोर्स मॉनिटर में तब भी कोई डाटा सेंड और रिसीव हो रहा है विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट ओपनिंग एनीथिंग, देन दैट सर्विस मे बी योर सस्पेक्टेड सर्विस. तो आप यहीं से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये सर्विस है जो बिना इंटरनेट यूज किए मेरा डाटा सेंड भी कर रही है और रिसीव भी कर रही है. So make sure that I hope you can easily identify these kind of services, malicious services from your system. बहुत सारे आप पोर्ट भी इसमें चेक कर सकते हो, लाइक कौन कौन से लिसनिंग पोर्ट्स हैं, कौन कौन से आपके TCP कनेक्शन बन चुके हैं. कि लाइक जैसे में आप देख सकते हो ये आपकी PID है, देन दिस इज योर लोकल IP एड्रेस एंड दिस इज योर रिमोट IP एड्रेस. तो यहीं से आपके जो कनेक्शन पता लग जाएंगे कि हाँ ये कनेक्शन आपका है और ये कनेक्शन किसी टारगेट का है जिसके साथ आपने कनेक्शन बना के रखा हुआ है. और अब इसी में आधी इंफॉर्मेशन आती है, लाइक अब जो हैकर्स होते हैं ना, जब भी वो मालवेयर बनाते हैं या जितने भी टूल्स हैं हैकिंग के, या वो मालवेयर अगर बनाते हैं, देन उनका जो पोर्ट होगा ना, जो रिमोट पोर्ट लिखा है वो हमेशा 1000 के ऊपर होगा, बिकॉज 1000 पोर्ट्स आर ऑलरेडी रिजर्व बाय सम काइंड ऑफ सर्विस. जो विंडोज ने 1000 पोर्ट्स को रिजर्व कर रखा है. जैसे किसी को 443 दे दिया HTTPS को, 80 दे दिया HTTP को, 25 दे दिया SMTP को. तो इसी तरह के 1000 तक तो आपके सारे पोर्ट्स रिजर्व पोर्ट माने जाते हैं. तो जब भी हैकर कोई ऐसा कोई यूज करेगा मालवेयर, तो मेक श्योर दैट उसका पोर्ट हमेशा 1000 के बाद वाला होगा.
तो यहीं से फिल्टर आउट करो 1000 के बाद वाले पोर्ट कौन कौन से हैं। जो भी पोर्ट आपको 1000 के बार वाले रिमोट आईपी के साथ मिल रहे हैं, देन दैट माइट बी योर सस्पेक्टेड आईपी एड्रेसेस। तो मे बी वो किसी कंपनी का आईपी हो सकता है, किसी वायरस का आईपी हो सकता है, या किसी वायरस स्पैम का, स्पाई का भी हो सकता है आईपी। तो अब आईपी अगर मिल जाता है देन यू हैव टू स्कैन योर आईपी एड्रेस कि वो आईपी किसका है। सो अगर आईपी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता करनी हो देन वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड एज अ शोडान। तो shodan.io एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर एक आईपी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देता है। जैसे अगर मैं इसी में से कोई एक आईपी उठाऊं, लाइक चलो फॉर एग्जांपल मैं अपना ही आईपी उठाता हूँ, जैसे व्हाट इज़ माय आईपी। तो दिस इज़ माय आईपी, आप देख सकते हो, फॉर विच आई एम यूजिंग द इंटरनेट। तो शोडान है, शोडान के अंदर मैंने आईपी को सर्च किया, तो हेयर यू कैन सी दैट इट शोज नो रिजल्ट। आपको इसका पूरा फॉर्मेट यूज़ करना पड़ता है, देन यू हैव टू लॉग इन टू यूज सच फिल्टर। एक्चुअली आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है इसके लिए, अदरवाइज अगर आप शोडान को यहीं से देखोगे तो तब भी वो इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। शोडान आईपी एड्रेस सर्च, तो वो आईपी का ही आएगा जो आपका लॉगिन के बाद चलेगा, लाइक दिस वन। फॉर एग्जांपल ये आपके आईपीज हैं या कोई भी सर्विस है, जैसे ही आप इसे ओपन करते हो तो वो आपको इसकी इंफॉर्मेशन दिखाता है। जैसे आपको एक लॉगिन करके दिखाई देता हूँ, तो आप भी इसमें एक फ्री अकाउंट बना सकते हो लाइक दिस वन। तो अगर आपको किसी भी आईपी की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो बता देगा कि ये आईपी है, इस नाम पे रजिस्टर्ड है, इस डेट को ऐड हुआ था इनके डाटाबेस में, इस कंट्री को बिलोंग करता है, एंड व्हाट आर द हेडर्स ऑफ दैट आईपी एड्रेस, कि वो आईपी पे क्या चल रहा है, कुछ 200 रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा, कोई सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कोई कनेक्शन इज अवेलेबल और नॉट। तो दैट इज द इंफॉर्मेशन विच यू कैन इजिली गेट बाय आईपी एड्रेस। तो अगर मैं आईपी की बात करूं तो आईपी कॉलन मैंने लिख के आईपी सर्च किया, तो वो दिखा नहीं रहा इसमें, या मैं गूगल से ही एक बार देखता हूँ, शोडान सर्च आईपी एड्रेस। तो ये उसका है शोडान का, जिसके थ्रू आप आईपी चेक कर सकते हो, लाइक जैसे आपने क्वेरी मारी यहाँ पे दिस वन, तो इसका जो नाम है दैट इज shodan.io/host/ip। तो यहाँ पे अपना पब्लिक आईपी या किसी का भी आईपी आप सर्च करो, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। सो अब आप देख सकते हो इसमें वो दिखा रहा है वेबसाइट नॉट फाउंड, इट मीन्स नन ऑफ द वेबसाइट इज वर्किंग इन दिस आईपी। अगर कोई भी इसमें सर्विस चल रही होगी इस आईपी के ऊपर, यू विल गेट अ डिटेल अबाउट दिस दैट आईपी एड्रेस। जैसे इसमें दिखा रहा है वो 164 में कि लाइक ये स्विट्जरलैंड का आईपी है, इसमें होस्ट नेम ये चल रहा है। तो जिस जिस वेबसाइट, जिस जिस आईपी को कोई वेबसाइट या सर्विस मिली होगी, उन्हीं पे वो आपको उसकी सारी डिटेल बता देगा कि ये वर्नेबिलिटीज है उनके अंदर, ये टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं, ये उसका होस्ट नेम है जिसको हम डोमेन कहते हैं, ये आईएसपी है उसका, ये वाले पोर्ट्स ओपन है, एंड दीज आर द सर्विसेज विच आर ओपन इन पर्टिकुलर दिस आईपी एड्रेस। तो मेक श्योर दैट अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की मिल रही है, तो अगेन इट मे बी यूजफुल टू और यूजफुल फॉर यू टू ट्रैक योर हैकर, अगर वो आपके सिस्टम में है। सो स्टेप्स आपके अगेन वही हैं, फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग एंड इनमरेशन। तो 3 स्टेप हैं, तीनों में आपको पता है इन्फॉर्मेशन किस तरह की निकालनी है। लाइक फुटप्रिंटिंग में आपको आईपी निकालना होता है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द नेम स्पेस, और यू कैन फाइंड आउट द एम्प्लॉय वेब यूजेज कि वेदर दैट आईपी बिलोंग्स टू सम होस्ट नेम और नॉट। बिकॉज ऐसा होता है कि कई आईपीज में आपको पता है कि वेबसाइट चलती होती है, कई वेबसाइट्स में आईपी कोई वेबसाइट चलती ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले पता लगाओ कि जो आईपी आप सर्च कर रहे हो किसी की टारगेट का, उसके पीछे कोई होस्ट नेम है या नहीं है। तो अगर होस्ट नेम है तभी ये शोडान आपका काम करेगा, अदरवाइज यू वोंट गेट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बिसाइड दिस अगर आपको उस आईपी की बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम whatismyipaddress.com। तो इस साइट से आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो किसी भी आईपी एड्रेस की। तो जैसे मैंने 14 वाला आईपी था मेरा, तो अगर मैं 14 वाले आईपी को देखूँ देन यू विल सी दैट द आईपी बिलोंग्स टू एनकेएन कोर नेटवर्क एंड इज इन सिटी चंडीगढ़, एंड हेयर यू कैन सी दैट। तो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ दिस आईपी वो एग्जिस्ट एंड इशूड बाय आईएसपी आपका जो है एनकेएन कोर नेटवर्क है।
then same here you will get the longitude and latitude details of this particular IP address. तो अगर आपको ये details मिल जाती हैं, you can easily do a lot of things with these kind of details. फर्दर मोर अगर आपको यही पता करना है कि इस आईपी के ऊपर चल कुछ रहा है या नहीं चल रहा, तो उसका स्टेप यही है. जैसे एग्जांपल की बात मैं दिखाता हूँ. जैसे ये एक वेबसाइट है जो मैंने ओपन की, एंड यू विल सी दैट द वेबसाइट इज वर्किंग फाइन. वेबसाइट पे कुछ ना कुछ चल रहा है. इट मीन द वेबसाइट बिलोंग्स टू सम काइंड ऑफ होस्ट. तो अगर मैं इसी वेबसाइट का आईपी निकालूं विद द हेल्प ऑफ CMD, तो व्हाट आई यूजली टाइप पिंग देन द डोमेन ऑफ दैट वेबसाइट. तो अगर आप पिंग करोगे, तो द आईपी एड्रेस, ये उसका आईपी एड्रेस है. देन अगेन अगर आप इस आईपी एड्रेस को सर्च करोगे इंटरनेट पे, एंड यू कैन सी दैट 403 फॉरबिडन. तो इट मींस आईपी एड्रेस पे कुछ नहीं चल रहा, लेकिन आईपी एड्रेस फर्दर आगे डोमेन के आगे मैप है जिसके अंदर आपकी वेबसाइट्स चल रही हैं. तो ये इंफॉर्मेशन भी बहुत आपकी जरूरी है, जिसके जो फुटप्रिंटिंग के अंडर आती है. जैसे हमने कहा था, इसी में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय वेब यूजेज, कि वो वेदर दैट आईपी बिलोंग्स टू सम www और नॉट. तो अगर वो डोमेन नेम में है या नहीं है, तो अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ योर फुटप्रिंटिंग. देन फर्दर स्कैनिंग की आती है कि लाइक आपको टारगेट की असेसमेंट करनी है कि उस टारगेट के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उसके अंदर क्या सर्विसेज हैं, कौन सा वो सिस्टम है, वेदर इट इज अ लाइनक्स और विंडोज. तो उसके लिए अभी बहुत सारी साइट्स इंटरनेट पे बन चुकी हैं. जैसे अगर मैं बात करूं, आपको किसी साइट के अंदर स्कैनिंग करनी है, तो ये साइट्स हैं उनकी. फ्री वेबसाइट सिक्योरिटी चेक मालवेयर, आप इससे किसी भी साइट को स्कैन कर सकते हो कि वेदर दैट वेबसाइट सम काइंड ऑफ मालवेयर और मालिशियस सर्विस रनिंग और नॉट. अगर आपको और डिटेल में जाना है, देन दैट वेबसाइट कॉल्ड एज अ डीएनएस डंपस्टर. अगर आपको पूरे ही डीएनएस के लेवल से आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है या स्कैनिंग करनी है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन गैदरिंग तो आपकी होगी. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज टू फाइंड आउट द सर्विसेज और सिस्टम्स की उसके अंदर क्या चल रहा है. जैसे अगर मैं cdac.in को ही सर्च करूं, देन यू कैन सी दैट इट विल स्कैन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर टारगेट. अब आप देख सकते हो cdac.in की जियो आईपी होस्ट लोकेशन आ रही हैं. एक इंडिया आ रही है और एक कनाडा आ रही है. तो कनाडा में भी माइट भी कोई मेल सर्विस होगी जो बाहर की यूज हम कर रहे हैं. तो मे बी ये डीएनएस होगा जो कनाडा में है, आप देख सकते हो. तो कनाडा रीजन में इनका जो डीएनएस है वो होस्टेड है. देन ये उसके मेल सर्वर के रिकॉर्ड्स हैं, ये उसके TXT रिकॉर्ड्स हैं, ये उसके ए रिकॉर्ड्स हैं जिसके थ्रू उन्होंने इंटरनेट चला रखा है सीडेक का. देन यू कैन सी दैट द सेंटर फॉर डेवलपमेंट, उसका नाम भी पूरा आ रहा है. इट मीन द आईपी बिलोंग्स टू करेक्ट डोमेन. देन आप देख सकते हो इसमें कौन कौन से होस्ट अवेलेबल हैं. जैसे वेबमेल है सीडेक का, मेल सेंडर डॉट सीडेक डॉट इन है. तो ये आपको उसकी डोमेन्स मिल गई, लाइक नॉट डोमेन्स, इट्स काइंड ऑफ सब डोमेन्स. तो ये सारी सब डोमेन्स हैं, जैसे ट्रेस covid19.cdac.in, HPC shiksha.cdac.in. सो अगेन ये सारी इंफॉर्मेशन है स्कैनिंग के थ्रू ही आपको मिली है. तो दिस इज योर सेकंड पार्ट, सेकंड स्टेप, स्कैनिंग. तो स्कैनिंग में आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं, लाइक व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज एंड व्हाट थिंग्स आर रनिंग इन योर टारगेट मशीन. एंड द लास्ट स्टेप इज इनमरेशन. लाइक अब आपको सारा कुछ अगर मिल चुका है, देन व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम दीज काइंड ऑफ थिंग्स. आपको आगे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, हाउ यू कैन गेट इनटू दैट सिस्टम. अब उसके लिए आप देख सकते हो, जैसे एक सब डोमेन मिली है, जैसे pramani.cdac.in मिली है. अब इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि द सर्वर विच इज यूजिंग दे आर अपाचे 2.2.15. तो अगर आपको इतनी सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यू कैन इजीली गेट इनटू द सिस्टम इफ द वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर सर्वर और वर्जन. तो अगर आपको पर्टिकुलर कोई सर्विस ऐसी चलती मिलती है और इस तरह की कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है, then that will be your third step, like enumeration. तो like intrusive probing, user list या security flaws. तो अगर ऐसा सिक्योरिटी फ्लो है, then that will be your last step into this hacking. तो हैकिंग जब भी करनी है, मेक श्योर दैट यू मस्ट फॉलो these 3 steps: फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग एंड इनमरेशन मॉड्यूल. तो ये आपके सिस्टम हैकिंग के टूल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में यूज होते हैं. लाइक बर्ब सूट आपका आता है, OPH क्रैक विंडोज का पासवर्ड क्रैक करने के लिए काम आता है, Nmap आगे पोर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए काम आते हैं कि कौन सा पोर्ट ओपन है कौन सा बंद है. एक्टिव पासवर्ड रिकवरी आपके विंडोज के पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए यूज होता है टूल, वन ऑफ द बेस्ट टूल जो विंडोज 10 में भी आपका चलता है. फॉर एग्जांपल आप अगर लॉगिन का पासवर्ड भूल चुके हो, देन दिस टूल विल हेल्प यू. देन मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क आता है जो रिमोटली काम करता है. फॉर एग्जांपल आपका टारगेट यूएसए में, और यू आर हियर इन इंडिया, तो अगर आपको इंडिया से यूएसए को हैक करना है किसी सिस्टम को, देन यू कैन इजीली यूज मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क इवन रिमोटली.
देन यू हैव एंग्री आईपी स्कैनर। ये स्कैनर तभी काम करता है इफ यू आर ऑन अ सेम होस्ट नेटवर्क। तो अगर आप एक कंपनी के अंदर हो, आपकी कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉयज हैं, तो अगर आपने उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, देन एंग्री आईपी स्कैनर इज वन ऑफ द बेस्ट टूल। देन अगेन केन एंड एबल आता है विंडोज के लिए, जो अगेन पासवर्ड क्रैकिंग में काम आता है। तो हमने एक हैकिंग के साथ एक वर्ड और पढ़ा था, स्निफिंग। तो ईटर कैप इज वन ऑफ द बेस्ट टूल विच इज यूज फॉर स्निफिंग के लिए। कि जैसे कोई फेसबुक अपनी यूज कर रहा है और आप साथ बैठे हो, अगर आप उसके नेटवर्क के पैकेट्स को स्निफ कर लेते हो, देन यू कैन इजिली गेट द डिटेल्स ऑफ द लॉगिन। लाइक वो क्या सेंड कर रहा है, क्या यूज कर रहा है। अगर वो पैकेट्स HTTP के हैं, देन इट कैन इजिली बी डिक्रिप्टेड। अदरवाइज अगर वो SSL कनेक्शन यूज कर रहा है, देन इट माइट बी डिफिकल्ट टू डिक्रिप्ट दैट पैकेट्स। तभी हम कहते हैं कि हमेशा SSL या HTTPS वाली साइट्स ही ओपन करो, बिकॉज वो पूरी इनक्रिप्टेड मोड में ट्रेवल करती हैं। लास्ट वी हैव अगेन LOPHT क्रैक, जो अगेन यूज फॉर विंडोज क्रैकिंग। एंड द 10th वी हैव अ नेटवर्क स्टम्बलर, जो आपका यूज होता है नेटवर्क की सर्विसेज की इनमरेशन के लिए। कि लाइक विंडोज के अंदर आपका VLC प्लेयर है, तो अगर VLC प्लेयर है तो देन व्हाट वर्जन ही इज यूजिंग, VLC प्लेयर का कौन सा वर्जन वो यूज कर रहा है। तो इस तरह की अगर नेटवर्क लेवल पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो नेटवर्क स्टम्बलर इज वन ऑफ द बेस्ट टूल। तो ये टॉप 10 हैकिंग टूल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में आपके यूज होते हैं। और ये आपके रैट टूल्स हैं। रैट मीन्स रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल, जिसमें आप एक वायरस बनाते हो, सेंड करते हो, एंड वो जैसे ही वायरस को एग्जीक्यूट करता है, उसका रिमोटली कनेक्शन आपको मिल जाता है। तो दिस इज काइंड वन ऑफ द बेस्ट टूल्स विच आर अवेलेबल इन मार्केट, रैट, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल। जिसमें आप देख सकते हो ब्लैक शेड है, डार्क कॉमेट है, या मिमी कैट्स है, जो पावर शेल में यूज होता है आपका। देन H10 है, चाइना चॉपर है, जो बहुत ही फेमस टूल था वायरस बनाने के लिए। अगर ऐसे ही आपको थोड़े से और टूल्स के बारे में ट्यूटोरियल चाहिए या नॉलेज चाहिए, देन वन ऑफ द बेस्ट टूल इज द फैट रैट। तो आप फैट रैट भी यूज कर सकते हो। फैट रैट विंडोज लाइनक्स आप देख सकते हो। अब मासिव एक्सप्लॉइटिंग, आप एक वायरस बनाओ, 100 लोगों को भेजो, 100 में से अगर 10 भी क्लिक करते हैं, यू विल कंप्लीटली गेट अ रिमोट डेस्कटॉप ऑफ योर टारगेट। आप उसका डायरेक्टली डेस्कटॉप तक एक्सेस कर सकते हो कि वो उस सिस्टम में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कौन सी सर्विसेज वो यूज कर रहा है, कहाँ पे वायरस आपने भेजा, कैसे भेजना है वायरस। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अवेलेबल इन दिस टूल। तो एक बार इस टूल के बारे में पढ़ के देखो, और इनके प्रोसेसेस को जरूर देखना। कि लाइक आप अगर एक इसकी टेस्टिंग करना चाहते हो, तो 2 मशीन लो, अपने आप ही टेस्ट करो, एक में बनाओ और दूसरे में सेंड करो, देन यू विल गेट द डीप व्यू ऑफ दिस टूल, कि कौन सी सर्विस में जाके इसने वायरस को डाला, किस नाम से इसका वायरस बनता है, कैसे इन्फेक्ट होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कैसे इसे रिमूव करना है। तभी आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकोगे, अगर आपको थोड़े से इन्फेक्शन रेट इनका पता होगा, कि हाँ ये टूल कैसे काम करते हैं, कैसे एंटीवायरस को बाईपास करता है। तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे विच वन इज द बेस्ट एंटीवायरस। तो एक बार इनका जरूर पढ़ लेना। बहुत सारे इसके ट्यूटोरियल्स इंटरनेट पे अवेलेबल है, इवन यू कैन गेट द ट्यूटोरियल फ्रॉम माय साइट ओनली। आप यहाँ से भी देख सकते हो कैसे इसको यूज करना है, द फैट रैट को। तो फैट रैट के अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं। एक और अच्छा सा टूल है, वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं चाओस फ्रेमवर्क। इजी टूल है, मिनिमल रिक्वायरमेंट है कॉन्फ़िगरेशन की। तो आप ये फ्रेमवर्क टूल भी यूज कर सकते हो। अगेन इट इज यूज फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल। सिंपली है, क्लिक करो, नंबर प्रेस करो 1 टू जनरेट। जैसे ही नंबर 1 प्रेस करोगे, जनरेट के लिए आपका एक वायरस बन जाएगा। अगर एक वायरस बन गया, उसे पेन ड्राइव में डालो, आगे स्प्रेड करो, एंड यू विल गेट द रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ऑफ योर टारगेट। आप देख सकते हो कैसे ये काम करते हैं। आपने जनरेट किया, एल होस्ट मीन्स योर आईपी, कहाँ पे वो रिवर्स कनेक्शन आए, और एल पोर्ट दे दिया, कोई भी फ्रेम दे दिया विंडोज़ का। जैसे ही एंटर किया, एक वायरस बन जाएगा। उसके बाद आपने लिसनिंग मोड में डाल देना है। तो जैसे ही कोई बंदा आगे वो मालवेयर को क्लिक करेगा, योर सिस्टम विल बी कनेक्टेड टू दैट machine. So then you can easily do all of the things like to download or upload, or you can browse any file, any websites in your target machine. बहुत सारे इंटरनेट पे ट्यूटोरियल्स इनके अवेलेबल हैं, यू कैन रेफर दैट ट्यूटोरियल्स। तो ये टॉप 10 विंडोज़ की वर्नेबिलिटी थी, जो अभी भी मार्केट में चल रही हैं। देन मेक श्योर दैट योर विंडोज़ मस्ट बी अपडेटेड। तभी हम कहते हैं कि हर चीज़ आपको हमेशा अपडेटेड यूज़ करनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारी वर्नेबिलिटीज हैं। तो और जो ये मालवेयर हैं, ये भी उन्हीं पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका विंडोज पूरा अपडेटेड है और आपने वायरस को क्लिक किया तभी आप हैक हो जाओगे।
अगर अपडेटेड सिस्टम है देन यू आर 100% सेफ। अगर एक भी कंपोनेंट आपका आउटडेटेड है और टारगेट अगर उसी सर्विस को टारगेट कर रहा है जो आपका आउटडेटेड है, देन योर सिस्टम विल बी हैक्ड। तो मेक श्योर दैट द सॉफ्टवेयर्स, द टूल्स एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम विच यू आर यूजिंग मस्ट बी अपडेटेड। सिमिलरली ये आपके मालवेयर्स हैं जो सिस्टम हैकिंग में यूज होते हैं, लाइक बैकडोर जिसे हम कहते हैं, हिडन मालवेयर जिसका पता नहीं चलता कि कहाँ पे वो इन्फेक्ट कर रहा है, क्या उसका नाम है। रिवर्स शेल होता है कि एक बार मालवेयर स्प्रेड होने के बाद या एग्जीक्यूट होने के बाद वो आपको रिवर्स कनेक्शन देगा उसका। रैट हमने अभी देखा, जैसे रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल है टू कंट्रोल एंड मॉनिटर द मशीन। एडवेयर आता है, आप किसी साइट को खोलते हो कई बार ऐड आने लग जाती है, तो दीज काइंड ऑफ मालवेयर्स आर कॉल्ड एज एडवेयर। देन बॉटनेट आता है जो आपके सिस्टम से किसी और सिस्टम को कंट्रोल करता है, कि आपका सिस्टम, आपने सिस्टम ऑन किया, आपका माउस नहीं चल रहा लेकिन कोई और ही माउस आपका कंट्रोल कर रहा है, सो दैट काइंड ऑफ मालवेयर्स आर कॉल्ड एज अ बॉटनेट्स। देन वी हैव अ ब्राउजर हाईजैकर, आपके ब्राउजर में कहीं ना कहीं कोई मालवेयर इन्फेक्ट हो सकता है। आप डाउनलोडर मालवेयर आते हैं, जैसे कई साइट्स में आपने देखा होगा दिखाता है कि टू व्यू दिस इंफॉर्मेशन प्लीज अलाउ जावा, जावा को अलाउ करो तभी आपको वो कंटेंट दिखाएगा। तो दिस काइंड ऑफ, वो जावा अलाउ जैसे करते हैं, एक फाइल वो कहता है कि फ्लैश फाइल डाउनलोड करो, तो उस तरह के मालवेयर भी एग्जिस्ट करते हैं इंटरनेट पे। की लॉकर्स आते हैं जो आपके कीपैड्स को रिकॉर्ड करता है कि आपने क्या क्या की प्रेस की। अब हम बात करते हैं कि फेसबुक आपकी सिक्योर्ड है, ठीक है, फेसबुक इज यूजिंग HTTPS, आपका डाटा इंटरनेट पे ट्रांसमिट, जो इनक्रिप्टेड होकर ट्रांसमिट जा रहा है, लेकिन अगर वही डाटा आपका ट्रांसमिट होने से पहले ही कैप्चर हो जाए तो अगेन फेसबुक कैन बी हैक्ड। तो ये जो की लॉकर्स होते हैं वो डाटा सेंड होने से पहले ही आपके जो कीवर्ड्स हैं उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, अगर आपके सिस्टम में की लॉकर वायरस है। रैंसमवेयर आता है कि वायरस होने के बाद लोग डिमांड करते हैं मनी की और फाइलों को इनक्रिप्ट कर देते हैं, फिर मनी देके आप उनकी डिक्रिप्शन की ले सकते हो। देन रूट किट आता है, पूरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को वो कंट्रोल करता है। बूट किट आता है जो आपके बूट में वायरस अगर चला जाता है आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें। स्केयरवेयर आता है टू परचेज समथिंग फोर्सफुली। लॉन्चर मालवेयर आता है, अगर एक मालवेयर से दूसरे मालवेयर को लॉन्च करना है। ट्रोजन्स आते हैं, जैसे आपने देखा होगा नेटबस 20 ये सबसे फेमस ट्रोजन थे, या Win32 नाम का ट्रोजन आता था बहुत पहले। वायरस आते हैं आपके, और लास्ट में आता है वॉर्म, जो आपके एक वायरस होता है जो आगे वायरस को स्प्रेड करता रहता है, जैसे एक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बन गया, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एज अ वॉर्म। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके मालवेयर्स हैं जो सिस्टम हैकिंग में यूज होते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज चाहिए देन मेक श्योर दैट स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, एक एक स्टेप से आप शुरू करो और इनके बारे में थोड़ा ट्यूटोरियल देखो, थोड़े टूल्स फाइंड आउट करो, और देन फर्दर इनकी सिक्योरिटी देखो, लाइक हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मालवेयर्स। नाउ व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ वायरस? वायरस अटैक के इंडिकेशंस क्या हैं वो आपको पता ही है, लाइक द प्रोसेस टेक्स मोर रिसोर्सेज एंड टाइम, वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। कंप्यूटर बीप्स विद नॉट डिस्प्ले, कंप्यूटर में सडनली एक बीप आ रही है। आपके ड्राइव लेबल चेंजेस हो रहे हैं, नाम उसका चेंज हो रहा है, जैसे C ड्राइव है, D है, देन E नहीं आ रहा, सडनली एक स्किप होके F ड्राइव आ रहा है, तो इट अगेन इट इज अ सस्पेक्शन ऑफ वायरस। अनेबल टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लोड हो रहा प्रॉपर वे में, या आपका कंप्यूटर स्लो डाउन है, या एंटीवायरस अलर्ट्स आपको आ रहे हैं, या कंप्यूटर फ्रीज कर रहा है, सडनली आपकी सिस्टम हैंग होने लग जाता है, स्क्रीन हैंग होने लग जाती है। आपके फाइल्स एंड फोल्डर्स आर मिसिंग, आपका डाटा उड़ जाता है, या कई बार हार्ड डिस्क ही नहीं खुलती, कोई ड्राइव ही नहीं खुलती, या ब्राउजर विंडो आपकी फ्रीज हो जाती है, आप कुछ भी खोलते हो। तो दीज आर द सम इंडिकेशंस ऑफ अ वायरस अटैक। अगर एक भी चीज आपके सिस्टम के साथ हो रही है देन यू मस्ट रिमूव द वायरस, आइडेंटिफाई द वायरस फ्रॉम योर सिस्टम। ठीक है जी। सो दीज आर सम एडवांस सिस्टम हैकिंग टूल्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया था फैट रैट, ये एडवांस्ड टूल्स हैं, बिकॉज टू यूज दिस टूल्स यू नीड अ लिटिल बिट नॉलेज अबाउट द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज ये सारे जितने भी टूल्स एडवांस, ये सारे लाइनेक्स बेस्ड हैं। सारे टूल्स आपको मैनुअली इंस्टॉल करने पड़ते हैं, बहुत रेयर है कि आपको टूल इनबिल्ट मिलेगा, जैसे आर्मिटेज है या मेटास्प्लोइट है, ये आपको इनबिल्ट मिल जाएगा काली लिनक्स के अंदर, बट रेस्ट ऑफ द टूल्स यू हैव टू इंस्टॉल मैनुअली फ्रॉम द गिटहब रेपोजिटरी। तो हर एक का सिस्टम होता है, हर एक की कमांड्स हैं यूज करने की, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज एडवांस सिस्टम हैकिंग टूल्स। So at the end, I just want to say one thing. The only system which is truly secure is the one which is switched off and unplugged. हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि लाइक अगर आपका सिस्टम स्विच ऑफ है देन ओनली यू कैन फील लाइक यू आर अ सिक्योर्ड
and your system is fully secured. So the only way to be safe is pay attention and act smart. तो जब भी कोई वायरस आता है, अलर्ट आता है, make sure that you have to act accordingly as early as possible. Now, if you have any kind of doubt, you can ask related to today's session. अगर किसी का डाउट है